PE equals to minus G M, that is mass 1, small m and mass 2. Yes, divided by distance r between the two masses. And the picture used to be like this. Capital M, say this is another mass small m, and this center to center distance is smaller. This distance is small. Okay. So this much of potential energy is stored where? By the system of these two masses. These two masses have stored this much of energy between them. Okay. Basic idea as far as board level is concerned, this is a good idea. Now the next level idea was this: what if we have three masses, say M1, M2 and M3. Obviously there would be distances, say this is R1 distance. So these two masses will be having a gravitational potential energy stored between them. How much? Minus G, M1, M2, that means M1, but M2 here has been taken as M3, divided by the distance between them, R1. This is the gravitational P for these two masses. दो करके mass लेना है. So this M1 and M2 will be now having, if they are separated by a distance R2, their potential, gravitational potential energy of these two masses minus G M1 M2 divided by their distance R2. So this is the gravitational P of these two masses taken together. Similarly, if these two masses M2 and M3 are at a distance R3, then they would be having, these two masses would be having minus G M2 M3 by R3. Practice karo, lekho. So if we consider these two masses, then gravitational potential energy for these two masses M1 M2 is this much, M1 M3 has been this much, and this M2 M3 gravitational potential energy of M2 and M3 taken together has been this much. So whatever be the number of masses present in a system, we will be considering two at a time and write the expression for potential energy for those two, a combination of two masses together. Okay, so let us revise it once as a numerical. Let us do this as a numerical. This is an equilateral triangle. Yes? Bro? Yeah? Just কখন জয়েন করেছো বলো, জাস্ট টাইমটা বলো। হ্যাঁ 9:31 ঠিক করে বলো, 9:30 না 9:31? এখনই বলো 9:31। তাহলে কোনটা মেনে চলবো বলো, আমি তাহলে সেরকম বলবো। 1 মিনিটে অনেক কিছু পাল্টে গেছে, কোনটা করবো বলো? এই দেখো আবার বলে 9:31। ঠিক আছে, তাহলে এটা থেকেই করো, এটা থেকেই করো বাবা, এমন কিছু হয়নি। গ্র্যাভিটেশনাল পি করছি, এটা থেকে করো, আর রেকর্ডিংও করছি, ডোন্ট ওয়ারি। হয়েছে তো? এটাতে হচ্ছে কি দেখো, এইটা থেকে করো। 3 masses M, M and M are placed at the vertices of an equilateral triangle. ये एक equilateral triangle है, इसका vertices का ऊपर vertices में रखा हुआ है तीनों identical masses M, M and M। ठीक,
चलो ड्रॉ करो. This is going to be a sum. Maybe to some students this may be a common sum, but ठीक है, कोई बात नहीं. I'll give you other sums. So these three masses are placed at the vertices of an equilateral triangle. दिख नहीं रहा है पर है. Anyway, now these masses are separated. एक दूसरे से बिछड़ गया. ये ले लिया मेडिकल, ये ले लिया इंजीनियरिंग, ये ले लिया लॉ. So they are now separated from each other in this manner. That separate कैसे हुआ समझो. कहानी का स्टोरी अब आ रहा है कि the identical masses which once were at a distance L, that means vertices of an equilateral triangle, तीनों था. Now they are separated in such a way so that the distance between each mass is 2L from the other. मतलब in other words इसको कैसे बोल सकते हैं बोलो तो. In other words, जो where have they been separated to? They have been separated or taken to the vertices of another equilateral triangle. And नहीं, another equilateral triangle जिसका side अभी कितना करके है? 2L, 2L, 2L. And initially they were at the vertices of an equilateral triangle of each side L. So question is what? Question is, what has been the change in potential energy of the system of three masses? So we will do this thing. Delta P equals to যে কোনো জিনিসের P টা আমরা করব P final, তারপর P initial. तो इसको करते हैं नेक्स्ट पेज में करते हैं इसको. सो PE इनिशियली वाज दो करके ले रहा हूँ, माइनस देन फॉर्मूला पुटिंग G. अच्छा सबका तो M था मास, स्मॉल m इंटू स्मॉल m, M1 M2. हाँ হবে, यस वी कैन से दैट, বলতে পারো. আসছি ওটা. ফার্স্টে let us follow formula, then let us make ideas how to do that directly. কত 9 না 9/4 তো হচ্ছে না, ঠিক করে দেখো. এই যে G/mm/L प्लस फिर से माइनस G/mm/L. अच्छा let us see this. देखो, if you consider these two, it would be having minus G/mm, that means m square by distance L. This mass is M, this mass is M. Okay. Now there can be three such combinations as I showed you, ये वाला और ये वाला. तो तीनों को मिला के दो करके लेके 3 times this much माने minus G/m square by L into 3. इसका 3 times. मैं माइनस साइन समेत ले लिया, ठीक है. ये P इनिशियली था, now P finally became this much minus G. Now m into m square. Now the distance has just changed to 2L from L. बस इतना ही डिफरेंस है. बाकी टोटल ग्रेविटेशनल P कितना होगा? माइनस G/mm/2L प्लस फिर से नेक्स्ट पेयर का माइनस G/mm/2L, फिर से दोनों का माइनस G/mm/2L. सो 3 times ऑफ दैट. तो दिस इज P फाइनल. सो डेल्टा PE हियर विल ऑलवेज मीन PE फाइनल माइनस PE इनिशियल. ठीक है, तो PE फाइनल माइनस PE इनिशियल अगर करेंगे सो वी विल गेट, देखो G/m square by 2L, फाइनल का है ना 2L, कॉमन ले लेता हूं, इंटू 3 उसको भी कॉमन ले लेता हूं,
माइनस, चल उसको भी कॉमन ले लेता हूं, तो पूरा फाइनल कॉमन चला गया, पी फाइनल, ये माइनस, तो इसमें बचा कितना 1 माइनस पी इनिशियल, इनिशियल कितना है, इनिशियल में तो बस नीचे 2 नहीं है, दैट मीन्स -2 होगा, ठीक है। अदरवाइज एनीवे मैं और एक उपाय बता रहा हूं, सो इट वुड बी 3/2 gm²/L, या तो gm²/2L इंटू 3, आंसर पॉजिटिव आ रहा है। बोलो। सेंटर ऑफ मास फेरिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन तो सेंटर ही থাকে। সেটা তো হবেই, কারণ হচ্ছে ওটা একটু ফিল্ডের আইডিয়া হোক, তারপরে বুঝতে পারবে যে ওয়ার্ক ডান in moving a charged particle or a mass from one point to another in a field, electric, magnetic, gravitational, এগুলো সব ডিফারেন্ট হবে, and they will depend on কি হবে, depend on path. work done কেমন ফাংশন, থার্মোডাইনামিক্সে কি শিখলে, work done আর হিট কেমন ফাংশন, work done and heat state function না path function, very good, path function. That's why they depend on path. So if you change the coordinate of the system, path changes. Infinity to that path, work done in moving a mass, unit mass, from infinity to a point in a gravitational field is called gravitational potential energy. So if you change the point, work done will change, and so will change the answer. সেই জন্য তখন ওভাবে করবে না, তখন এমনি করে দুটো দুটো করে নেবে, দুটো দুটো মাস নেবে, নি তাদের পি, আবার দুটো তাদের পি, এমনি করে টোটাল এনার্জি অ্যাড করে দেবো, বুঝছো, দ্যাট ইজ দ্য প্রসেস। ওকে, এবার আমি একটা জিনিস বলছি, শোনো, দোজ হু হ্যাভ আ লিটল ডাউট ইন দিস, আচ্ছা হুইচ নাম্বার ইজ গ্রেটার, -8 নাকি -2, कौन नंबरটা ग्रेटर, माने जिसका मैथ्स नहीं है उसके लिए बता रहा हूँ, अदरवाइज मैथ स्टूडेंट सब अंडरस्टूड दिस, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये सब ना करके भी वो बोल देगा, ये दोनों लाइन देख के मैथ स्टूडेंट बोल देगा कितना चेंज होगा। अगर मैथ्स का साथ टच उतना नहीं है, दो स्टूडेंट्स में हैव सम डिफिकल्टी, उसका भी शॉर्टकट बता रहा हूँ। बोलो कौन ज्यादा है, -8 ना -2, व्हिच नंबर इज ग्रेटर, ऑब्वियसली -2, क्यों, कम नेगेटिव है ना, कम नेगेटिव है उसलिए -2 ज्यादा है। सिमिलरली सबके लिए बता रहा हूं, इफ दिस इज अ प्लैनेट of mass m and this is a satellite, ये एक सैटेलाइट है of mass small m, ये दोनों का अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जितना होगा, सपोज इसका रेडियस है r1 ऐसे, now if this is taken to another orbit, दूसरा ऑर्बिट में लेके चले गए इसको, ठीक, जो कि ऐसा दूसरा ऑर्बिट, एंड दैट इज एट अ डिस्टेंस r2, नाउ द सैटेलाइट जंप्स टू दिस पोजीशन, सैटेलाइट यहां पे आ गया घूमते घूमते, अगर ऐसा हो गया, सैटेलाइट मूव्स फ्रॉम ऑर्बिट 1 टू ऑर्बिट 2, अच्छा the orbit along which a satellite revolves, geostationary satellite, उस ऑर्बिट का नाम क्या होता था, what is the name of that orbit, parking orbit, जो what is parking orbit, now the orbit along which geostationary satellites move or revolve, वैटा, जय हो, ठीक है, चलो आगे बढ़ो। तो मेरा बोलने का मतलब है कि if a satellite moves along r1 radius and another satellite of same mass moves along r2 radius, and this is earth,
which satellite and earth taken together, दो दो करके लेना पड़ता, will be having more gravitational potential energy. কোন সিস্টেমটা বেশি হবে বলো তো গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল এনার্জি? R2. So PE1 is minus GMM by R1 and PE2 minus GMM by R2. R2 ग्रेटर देन R1 है, पिक्चर से समझ में आ रहा है? देखो लॉजिक 1 ये बता रहा है R2 ग्रेटर देन R1. अब तुम लोग क्या करोगे? यू गेट दिस क्वेश्चन, देन यू ओपन दोज QR कोड्स एंड सॉल्यूशंस ऑन ऑल दोज वीडियोस. मत करो, खुद ही से सोचो एक बार. पिक्चर ये बता रहा है R2 ग्रेटर देन R1. A student can understand this from the picture. Okay. तो इससे वो डिसीजन क्या लेता है? डिसीजन ये लेता है कि जिसका R2 क्योंकि ज्यादा है तो GMM ये तो कांस्टेंट पार्ट है, G इसका मास उसका मास फिक्स है, डिवाइडेड बाय R1 अगर कर दूं जहां पे R1 छोटा है और GMM बाय R2 कर दूं, R2 ग्रेटर है तो नीचे अगर ग्रेटर हो गया ये नंबर छोटा पड़ जाएगा. दैट मीन्स दिस शुड बी ग्रेटर देन दैट. लेकिन हम लोग जानते हैं कि इफ वी मल्टीप्लाई दिस बाय अ नेगेटिव साइन, नेगेटिव से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे दैट मीन्स माइनस ऑफ दिस और वो हो गया माइनस ऑफ दैट. अब कौन ज्यादा हो जाएगा? R2 ग्रेटर, नीचे ज्यादा पर नेगेटिव. नीचे ज्यादा माने छोटा हो जाएगा वैल्यू पर नेगेटिव, तो माने लेस नेगेटिव, ग्रेटर देन मोर नेगेटिव. अब तो वही ज्यादा होगा. GMM by R2 would be greater than GMM by R1. Away the satellite, more the PE. ओ इसका माने फिर ये भी हुआ क्या? ये सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट का नाम है दुखीराम. क्यों? इसका फ्यूल जो है ना सोलर सेल्स, जो जापान का सैटेलाइट का हुआ था, लैंडिंग किया उल्टा करके, जिधर सोलर प्लेट है वो नीचे आ गया. तो सनलाइट नहीं मिलेगा तो एनर्जी नहीं मिलेगा तो इट कैन नॉट ऑपरेट एंड टेक पिक्चर्स. तो वैसे ये सैटेलाइट है, हाँ जापनेट रिसेंट. तो वैसा ये एक सैटेलाइट है, मान लो इसका सेल जो है सोलर सेल्स कुछ कारण से खराब हो गया एंड इट सडनली स्टॉप्ड. ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, मैं तो आज थ्योरी सिखा रहा हूं. दिस सैटेलाइट स्टॉप्ड सडनली. स्टॉप होने का बाद व्हाट हैपेंस, इट नाउ फॉल्स ऑन अर्थ. स्टॉप हो गया माने क्या? इट विल नॉट रिवॉल्व अराउंड अर्थ एनी फर्दर, देन इट विल बी अट्रैक्टेड बाय अर्थ. वो तो था ही शुरू से ही ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, गिरेगा धड़ाम से अर्थ के ऊपर. क्वेश्चन क्या आता है? विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द अर्थ? सम कैसे बनाएंगे? दूसरा, मैं क्वेश्चन का टेक्निक बता के रखता हूं, यहां पे सम नहीं बना रहा हूं. दूसरा बोलेगा व्हाट एनर्जी नीड्स टू बी सप्लाइड, या तो वर्क नीड्स टू बी डन टू मूव अ सैटेलाइट फ्रॉम पार्किंग ऑर्बिट 1 टू पार्किंग ऑर्बिट 2. तो यहां पे क्या होगा आंसर? यहां पे होगा ये वर्क डन कितना हो जाएगा? डेल्टा पीई. डेल्टा पी कैसे निकालेंगे? ये सम बनाए थे अभी, we just found this sum. इसका आंसर भी मिला था. Just like that, you have to find delta P in this case. Minus GMM by R1 minus GM by R2. सबट्रैक्ट कर दो. किससे किसको सबट्रैक्ट करें? फाइनल माइनस इनिशियल बोला था मैं.
P2 माइनस P1, अब प्लस आए चाहे माइनस आए, जो आंसर होगा होगा, बट यू शुड बी श्योर कि आंसर ऐसा ही आना चाहिए। क्या श्योर? ये दिस मेक यू कॉन्फिडेंट कि मैं जो कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं। चलो एक पार्ट गया। दूसरा इसका डिस्कशन हो गया, डिस्कशन पार्ट था ये, डिस्कशन पार्ट सामने बना रहा हूं। शाम के लिए विल बी, मैं बोला हूं कि अभी तुम लोगों का स्कूल एग्जाम शायद चल रहा होगा, छोटा छोटा क्लास होगा लेकिन सीखेंगे अभी, और लास्ट में होगा यू हैव टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स, लास्ट में करेंगे, अदरवाइज यू हैव बुक्स, लेकिन उसके लिए तैयार बनो पहले। सेकेंड टाइप ऑफ सम, दिस इज अर्थ। नाउ अ सैटेलाइट सडनली लूजेस ऑल इट्स वेलोसिटी, माने इसको लिख के रखो, सडनली स्टॉप्स, सडनली स्टॉप्स, तो it will fall on earth eventually, then what would be the velocity of this satellite? क्या करेंगे? टेक्निक बता दो क्या करेंगे। आज के শরীরটা ভালো নেই বুঝলে, এই সিজন চেঞ্জ হলে আমার হবে এই গলা, আর কিছু না, সব ঠিক আছে, শুধু গলাটা যাবে ধরে जगह। तो देखो इसमें यहां पे ग्रेविटेशनल पी कितना है, एनर्जी कंजर्वेशन, ओनली वन आइडिया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है तो भाई एनर्जी माइनस जी एम एम बाय आर। सपोज इट्स रेडियस वाज आर एंड डोंट confuse yourself with this, small r is given by this, ठीक। एक बार लास्ट क्लास में डिस्कशन हो चुका है 2.5 आर और 3.5 आर वाला। दिस इज स्मॉल आर विच इज गिवन बाय कैपिटल आर प्लस एच। तो मैं स्मॉल आर से लिख रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी यहां पे कितना था सैटेलाइट का, माइनस जी एम बाय स्मॉल आर। तो जब ये 8 के ऊपर गिरेगा सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक बन जाएगा, है ना? ना ना, और उसलिए ये क्वेश्चन देता है, और स्टूडेंट आज भी इतिहास गवाह है कि भूल करता जाता है। क्यों? बिकॉज व्हेन दिस सैटेलाइट स्ट्राइक्स दिस पॉइंट, सोचो तो उसका पास क्या क्या एनर्जी है, पूछ लेते हैं भाई साहब तेरे पास क्या क्या एनर्जी बचा भाई साहब आपका पास? बोल रहा है भाई अब इतना जोर से गिरूंगा तब तो काइनेटिक एनर्जी तो होना ही होना है। तो बोला ठीक है ले लो, ये ले लो आप। और कुछ है क्या? बोला है ना, क्या? तो वो बोल रहा है कि आप ही बोल दो क्या एनर्जी है मेरे पास। तो व्हाट वुड बी दैट second type of it? It still is left with potential energy, जीरो नहीं होगी as it touches surface। क्यों? क्योंकि surface is still capital R distance away from the center। so यहां पे जब ये सैटेलाइट लैंड करेगा with high speed, they still maintain a distance center to center as capital R। So you have to account for the potential energy when two bodies are at a distance R। कितना होता है? माइनस जी एम एम बाय आर। दिस R is capital R, और पहला बार जो स्मॉल r लिखा हूं वो स्मॉल r कितना होता है? देखो यहां से R प्लस एच, ठीक है। दिस शुड बी अ सिंगल लाइन सॉल्यूशन फॉर दिस। बोलेगा सैटेलाइट है ना 10 r ऊंचाई पे, द हाइट इज 10 r, तो स्मॉल r कितना हो जाएगा? 11 कैपिटल R। एक एग्जांपल बता रहा हूं, देखो बेटर, ये है 10 r और रेडियस ऑफ अर्थ खुद है r, और यहां पे सैटेलाइट है, s माने सैटेलाइट। तो व्हेन दिस सैटेलाइट लैंड्स ऑन अर्थ यहां पे विद अ वेलोसिटी v, मैं इक्वेशन बना रहा हूं, देखो मेरे साथ साथ लिखो, तो इसको ड्रॉ कर लो। अर्थ का मास ले लो m एंड ड्रॉ दिस पिक्चर। जितना ड्रॉ करोगे प्रैक्टिस करो, दैट इज योर गेन। समझ लो, तो मेरा बोलने से उतना असर नहीं होगा, सुनने से उतना असर नहीं होगा जितना करने से होगा। करो। पोटेंशियल एनर्जी मैं ऐसे बोलूं, मैं देखो तो मैं दो नंबर्स लिख रहा हूं, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। माने एनर्जी जितना था ना टोटल एट पॉइंट 1 सैटेलाइट अर्थ मिला के, उतना एनर्जी ना 2 पोजीशन में भी होगा। दैट्स इट। इतना सीधा छोटा सा आइडिया है। जब तुम कोई साम को अप्रोच कर रहे हो, बेसिक तो बनता है ना कुछ मन में
we will apply certain ideas. This is that idea, energy balance. चलो E1 लिख रहा हूं. अब E1 में क्या था कि सडनली स्टॉप हो गया था, ऐसा बोला हुआ था. उससे क्या लेना देना है, सडनली स्टॉप हो गया ना क्या हो गया. We have to take this data. Stop हो गया माने it loses all its velocity. That means no kinetic energy is associated at position 1. So position 1 में सिर्फ potential energy minus GMM by R1. अच्छा R1 माने R ही सोचो, R minus GMM by R. Small r माथे रख दे, हाँ small r. Plus kinetic energy है नहीं, equals to when it lands on 2. तो kinetic energy it must have half mv square, small m माने mass of the satellite, plus minus g mm divided by capital R. What I mean to say, if this is given कि this is 10 r, then what should you consider as 10 r? H. Then r should be how much? ये एक्सप्रेशन को याद रखना इन ग्रेविटेशन, r इक्वल्स टू r प्लस h. तो ये कितना हो गया 10r प्लस r, दैट इज 11r. h तो 10r प्लस रेडियस ऑफ अर्थ. सो इन प्लेस ऑफ दिस r यू शुड अप्लाई 11r. अब ना ये gmm by r एक साइड, half mv square, small m cancel, find v, छोटा बन जाएगा सब. इसको अप्लाई करके बताओ. समझाया, अब थोड़ा प्रैक्टिस की बारी, बस इसी को आज समझाएंगे. we will apply anything that concerns gravitational p and then তারপরে ছুটি, কেন ছোট ক্লাস হবে বলেছিলাম. একটা কনসেপ্ট ভালো করে শেখো, আমি তোমাদের দেখাচ্ছি কত রকম ডিফারেন্ট টাইপের সামস হতে পারে. দেখো নেক্সট দেখবে, দেখো এটা দেখাচ্ছি. We were doing gravitational P, এইটা করো, Earth, mass m, radius r. Draw করো, mass m, radius r. Okay. Now, draw two orbits, orbit 1 and orbit 2. Orbit 1 এর হাইটটা হচ্ছে 10 টাইমস রেডিয়াস অফ আর্থ, আর অরবিট 2 অরবিট 2 হচ্ছে সে কত করবে 20 times radius of Earth, orbit 2. Then you have to find what? You have to find the potential energy of the satellite at 2 is to potential energy of the satellite at orbit 1. What would be this ratio? What would be this ratio? Sir, will it be 11 by 21? Yes. Yes. Now, potential energy. The potential energy for that, you need to think of this only, minus GMM by R2, and this would be minus GMM by R1. So this finally becomes equal to R1 by R2. That's it. Now R1 is how much? R1 radius 1, 11 R, and R2 21 R. So the ratio would be 11 by 21. R1
r plus h. 10r is height and its own radius of the planet is r. So this is 11r as I showed you there. ठीक है. This is the ratio, all right. You understood this. अब थोड़ा higher level हो जाए. Higher level ऐसा है. थोड़ा सा higher level. This is a planet of mass m. This is another planet. इसको कर दो m. इसको कर दो 4m. चलो 4 times. Now center to center distance is say 12. Center to center distance. Hello. Now the question is, if from the middle point M, this is the middle point of say AB, from the middle point M, oh, these are M, I cannot write this M. So let me write O. O is the middle point. That is AO and OB are both equal to L. Because this is 12, this is middle point. Okay. Now from this middle point, a mass small m is to be projected with velocity v. What should be the velocity of projection so that this mass moves a distance L and then returns back? Moves a distance L and then returns back. यहाँ पे लिख दो. एक मास को थ्रो कर दिए, ये इतना तक गया, गलती का एहसास, घर वापसी, वापस आ गया. Why? Because these two masses, देखो, these two masses, जैसे this mass goes away from them, these two masses will try to pull it towards their centers, and as a result, it will again come back to this position. So, however, it will return, moving away from these two masses. So, question is, what should be the velocity so that this mass reaches L distance? Is there gravitational acceleration? Don't consider them. These are, I mean, don't consider mg here, okay? Because this is 3D space outside Earth. Outside Earth. These are planets of mass 4m. ये और एक planet है of mass m. तो यहाँ पे अर्थ कहाँ से आ जाएगा? ये खुद ही तो planets है. और ये एक मास है. हो सकता है कैम्बीज बॉल या तो बहुत बड़ा एक एस्टेरॉयड. जो भी हो, it is a mass. That means Earth is not anywhere concerned here. और मे बी कि ये खुद ही अर्थ है. What I mean to say, do not consider small g here as gravitational acceleration. वो कब होता है? जब height थोड़ा कम रहता है, then we consider small g, mg. वो तब consider करते हैं. यहाँ पे gmm by r, gravitational potential energy. Energy balance करके करो इसको. देखो तो, যদি কেউ করতে পারো. root over কত? root over 10 gm by 5. Oh, L.
এলই, তো আমি বলছি যে √10 GM/L এসছে বলছো, স্মল এমটা ক্যান্সেল হয়ে গেছে, তাই তো? আচ্ছা, √10 GM/L, আচ্ছা লেট আস সি দ্যাট। 10G, দেখো সবাই করো, ট্রাই করো, কিছুক্ষণ টাইম নাও, সবাই ট্রাই করো। আর 30 মিনিটস, বেশিক্ষণ টাইম নেবো না, তোমাদের এক্সাম আছে 30 মিনিটস, কিন্তু এই টপিকটা ভালো করে শিখতে হবে তোমার। এটা একটু হায়ার লেভেল হলো, যদি ভ্যালুগুলো একটু চেঞ্জ করে দিই তাহলে খুব ফেমাস এক্সামের কোয়েশ্চেন্স এগুলো, কিন্তু কনসেপ্টগুলো যদি বোঝো তাহলে এটা এখন স্কুল এক্সামে চলে আসবে। এখন যা তোমাদের যা সিস্টেম হয়েছে জানো, এখন এগুলো স্কুল এক্সামও আসবে, দেখবে তোমরাও বলতে পারবে। আচ্ছা আগে তোমরা করো, ট্রাই করো, নিজেরা ট্রাই করো, বেস্ট থিং ইজ দ্যাট। কেউ বললে আনসার? স্যার আমার না একটা এসছে কত? √5√2 GM/L into √2 - 1। আচ্ছা ঠিক আছে, দেখা যাক। ফার্স্টে না লেট আস ফাইন্ড পোটেনশিয়াল এনার্জি। করছো? আচ্ছা ঠিক আছে, করো করো, কত থাকো, একটু পরে বলবো। করে নাও, তবে একটা রুট ওভার আসা দরকার। রুট ওভার তো ইয়েরও এসছে, রুদ্রাক্ষ্মীর, তো একটা মনে হচ্ছে আনসার থেকে আরেকবার দেখো তো রুদ্রাক্ষ্মী। Sir, আমার net answer এসেছে v equals to whole square root 10 gm within brackets 1/√2l minus 1/l. এটা হতে পারে। চলো তাহলে লেটস ডু দিস, চলো। ফার্স্টে না আমি দেখো কালার দিয়ে দিই। 1/√2l আর 1/l এর সাইন চেঞ্জ হয়ে যাবে আর মাইনাস 1/l minus 1/√2l. তার মানে এলটা যদি কমন নিই 1/Lটা, তাহলে কত আসছে? 1 - 1/√2। Minus 1/√2. ঠিক আছে, দেখা যাক। দেখো সামটা এমনি করে বানাচ্ছি।
যারা ফার্স্টে অতটা ইমাজিন করতে পারছো না, লেট আস কিপ দিস অ্যাসাইড, এটা একটু ছোটো করে আলাদা রাখছি। ফার্স্ট কেস এটা, all the three masses 4m, m, a small m, all the three masses, they were kept like this as a रखा हुआ था, ठीक है। नाउ हम लोग ना इसको ऐसे ऐसे ग्रुपिंग करेंगे। लेट अस ग्रुप दीज टू। तो ये दोनों का ग्रेविटेशनल पी कितना होगा, जी m1 है 4m इंटू इसका मास दैट इज m डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, हो गया। अच्छा, ये दोनों का कितना होगा फिर, इफ वी टेक दोज टू टुगेदर, ऐड कर देंगे। क्यों बोलो तो ऐड क्यों करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, ऐड होगा विथ साइन। चलो ये दोनों का, हाँ, स्मॉल एम और इधर का कैपिटल एम माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम एल। चलो इसका भी हो गया, हो गया। तो यही दोनों हो गया। नहीं, और एक है, और एक है किसका, वी कैन अगेन कंबाइन दीज टू सेपरेटली, इसको और इसको, ये दोनों को लेके भी कर सकते हैं, पर वो ना करने से बेटर होगा। और भूल से अगर नहीं किए हो, यू आर लकी, पर सीख लो कि वो भूल है। बाकी आंसर सेम आएगा और इससे छोटा माने इससे थोड़ा मेहनत कम पड़ेगी। अगर भूल से इसको भूल कर दोगे तो बेटर होगा, बिकॉज व्हेन यू कंबाइन 4m मास एंड कैपिटल M मास, इसको छोड़ दोगे, इसको और इसको फर्स्ट और लास्ट को लेके जब कंबाइन करोगे, मैं बोला था दो दो करके लेना है, दैट मीन्स ये पिक्चर में ये मास और ये मास, दीज टू मासेस, तब ये दोनों का देखो पोटेंशियल एनर्जी होगा माइनस जी कितना था 4m और ये m, तो 4m इंटू m এসছে। আচ্ছা বলো কি এসছে বলো। স্যার এটা হচ্ছে রুট ওভার রুট ওভার তার ভেতরে 5√2 gm বাই l, আবার ব্র্যাকেটে √2 - 1। তার মানে আমার root over gm by l into 2√2 minus 10. 2√2 minus 10, তার মানে अच्छा रूट ओवर रूटे भे तो नेगेटिव इज कमिंग, नेगेटिव ना पॉजिटिव देखो विद इन रूट 2√2 minus 10, नेगेटिव ना पॉजिटिव देखो, नेगेटिव। ওইটাকে আরেকবার দেখো তো কি করা যায়, মানে কিছু তো কারেকশন করতে হবে, দেখ নিজেই বার করো যে কোথায় আমায় কারেকশনটা করতে হবে। অনেক দূর ঠিক করেছো, তো ঠিক আছে দেখো, again I am repeating, these two masses 4m and small m, potential energy, capital M and small m, potential energy, capital M and 4 capital M, this much, g m1 m2 by their distance। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ ये तीनों मासेस का, दिस प्लस दिस प्लस दिस, ठीक है। नाउ काइनेटिक एनर्जी भी है, व्हेन यू हैव थ्रोन दिस विद द वेलोसिटी v, इसको v स्पीड से तो थ्रो कर दिया ना, तो इसका पास काइनेटिक एनर्जी भी है, कितना, हाफ स्मॉल m इंटू v स्क्वायर। देन व्हाट इज द टोटल एनर्जी नाउ, देखो मैं लेफ्ट साइड में लिख रहा हूं। अच्छा पहले थोड़ा नहीं, पहले एक एक करके लिखता हूँ, इट वुड बी इज हेल्पफुल फॉर यू। देखो माइनस जी, ये दोनों मिलकर कितना हो रहा है 4mm डिवाइडेड बाय l, एक ये हो गया प्लस
माइनस जी एम एम बाई एल, एक ये हो गया, प्लस माइनस जी 4m स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2l, एक ये हो गया। कैंसिल करने की कोई जरूरत नहीं, रहने दो ऐसे, प्लस तीनों का तीन पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको जो थ्रो करोगे विथ काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। चलो हो गया। दिस इज द एनर्जी एट वन बाय इनिशियल पोजीशन। अब फाइनल, अब देखो क्या होगा। When this mass reaches this position, ये मान लो फाइनल पोजीशन है, तब A पोजीशन से ये इतना दूर हो गया, B पोजीशन से ये इतना दूर हो गया। तो A पोजीशन एंड न्यू पोजीशन, इसको न्यू बोल के लिखता हूं, जहां पे ये रिटर्न्स बैक करता है, जहां से ये डिस्टेंस L और L का ये हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, L√2। सिमिलरली ये हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, L√2। तो अब न्यू एनर्जी पोजीशन जो है यहां पे वो लिख रहा हूं मैं, माइनस जी, ये तो 4m का 4m ही रहेगा, 4m और ये स्मॉल m, तो ये दोनों का पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, इतना बाय L√2। ये दोनों का कितना हो जाएगा, ये दोनों का माइनस जी, ये था m इंटू m डिवाइडेड बाय दोनों का डिस्टेंस L√2 हो गया। अच्छा, ये दोनों का कितना होगा, जो मैं बोला था कि ना करना ही अच्छा है, लॉजिक बता दूंगा, छोटा हो जाएगा। ये देखो, ये दोनों का कैपिटल M और कैपिटल 4m, इसका तो कोई मूवमेंट हुआ ही नहीं, तो देयर मासेस आर सेम एज वेल एज देयर डिस्टेंस। तो माइनस जी 4m m डिस्टेंस 2l, ये तो इतना ही रह जाएगा। अच्छा, और कुछ नहीं आएगा, और क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी ना, एज इट इज गिवन दैट द मास रिटर्न्स बैक फ्रॉम दैट, तो हम लोग जानते हैं जहां से वो रिटर्न बैक करता है वहां पे तो स्पीड 0 हो चुका है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ है, 0, तो प्लस 0, नो काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी सिर्फ व्हेन यू हैव थ्रोन इट अवे तभी, ठीक है, बस यही इक्वेशन है। अब जो सॉल्यूशन करना है इसी से करना है। एक चीज से मैं बोलूंगा वो है ये, देखो एक बार, दीज टू मासेस पहले भी जहां पे था अभी भी वहीं पे है, तार মানে বুঝতে পারছো যে শুরুতে ওদের যে পোটেনশিয়াল এনার্জি ছিল পরেও একই আছে, তাহলে ইকুয়েশনটা দু সাইড থেকে ওটা ক্যান্সেল হয়ে যাবে। मतलब अगर मैं लिखूंगा तो पहले देखो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ये दोनों मासेस का कितना था, ए और बी का इतना था, अभी कितना है ए और बी का, उतना ही है, कैंसिल हो गया। तो मैं शुरू में बोला था मजाक से कि इफ यू डू नॉट राइट दिस, भूल से अगर लिखना भूल गए तो बेटर है, टाइम सेव हो गया। अदरवाइज इफ यू कंसीडर देयर पोटेंशियल एनर्जी, तो बिफोर और आफ्टर क्योंकि सेम रहता है, दैट्स व्हाई चेंज में दे विल नॉट अपीयर, तो उसको ना लिखने से भी चलेगा। एनीवे, सिर्फ चेंज इसका इसका हो रहा है, उसका पोटेंशियल एनर्जी लिखो, बट शुरू में एज अ बिगिनर मैं तो बोलूंगा लिखो उसको, उतना आइडिया भी शुरू में नहीं आएगा, भूल कर बैठोगे, उससे अच्छा यू राइट देम, कैंसिल देम, कोई बात नहीं। अब तो हम आगे बढ़ेगी। नाउ लेट अस सी व्हाट बिकम्स द आंसर। ये तुम्हें बना के दे दिया था ऐसे, देखते हैं आंसर क्या होता है। ये कितना हो गया, फिर सबको उधर भगाते हैं, सिर्फ इधर ना, लेट अस कीप दिस थिंग, हाफ एम भी स्क्वायर लेफ्ट साइड में रखे, इंटू कत, আচ্ছা এটা হতে পারে, দেখা যাক। তাহলে हाफ एम बी स्क्वायर নিলাম, এই সাইডে রাখলাম, बाकी सबको उस साइड में लेके जाएंगे। तो इस साइड में कौन कौन है, एक ये है, एक ये है, तो ये दोनों मिला के कितना हो जा रहा है, जी एम एम L√2 अगर कॉमन लूं, हाँ ठीक, -4 और -1, ठीक, -5 जी एम एम बाई L√2, L√2
और इंटू 5 आ रहा है। दिस इज द राइट हैंड साइड ओनली, और लेफ्ट हैंड साइड का ये दोनों मिलके कितना हो रहा है, वही G/mm/L इंटू 5, तो उधर जाके प्लस हो जाएगा। फोर G/mm/L, 1 G/mm/L, 5 G/mm/L, and when it goes to the other side it becomes positive. पॉजिटिव लिख दिए। तो ये दोनों में से तो भाई G/mm एज अ फैक्टर रखेंगे, इंटू 5 एज अ फैक्टर रखे, नीचे L एज अ फैक्टर रखे, तो भाई बचा क्या फिर, एवरीथिंग कॉमन ही तो चला गया। तो ये 1 बचा, इसमें से 1 बचा, और इसमें से कितना बचा, माइनस बचा। ये हुआ राइट साइड। और लेफ्ट साइड में तो बेचारा हाफ m v², जिसमें से m कैंसल, तो दिस इज द आंसर, यस। रूट अंडर, यस, योर आंसर्स आर राइट। ये 2 और 5 मिला के तो 10 बन गया, 10 G, तब वो M, स्मॉल m तो कैंसिल, डिवाइडेड बाय L, एंड ब्रैकेट में 1 माइनस 1/√। और को এটাই বলছিল না, এটাই তো বলছিল তোমারও তো বোধহয় এই আনসারটাই এলো। হ্যাঁ আচ্ছা, 1/√2 ভ্যালুটা আমি তোমাদের মনে, হ্যাঁ গুড, 1/√2 ভ্যালুটা তোমাদের আমি মনে রাখতে বলেছি, ক্লাস 12-এ অল্টারনেটিং কারেন্টে কাজে লাগবে। কত হবে ওটা, 1/√2 ভ্যালু কত? 27. ভেরি গুড, 0.707, দ্যাট মিনস 0.7 মনে রাখবে, দ্যাট উইল হেল্প ইউ। 0.7, তো যাই হোক, এনিওয়ে চলো। স্যার আমাদের এটাতে এনসেটে এসেছিল অ্যাকচুয়ালি √2 আর 2 টাকা করে কেটে দিয়ে 5√2 করে দিয়েছে। হ্যাঁ ঠিক আছে, नो प्रॉब्लम, हाँ नो प्रॉब्लम, কেননা ইউ নেভার নো कि কোন অপশন में कौन सा अपियर कर रहा है, तो ऑप्शन देखे তোমরা कैलकुलेशनটা করো। ये रफ वैल्यू उसलिए नोटिस करना कि मैं बोल रहा था कि डू नॉट चेंज दिस ग्रुप, ये G/mm नीचे L, ये फॉर्मेट को सेम मेंटेन करो। अब ना लास्ट में ऑप्शन देखो कैसे दिया हुआ है, एंड चेंज योर और मेक योर आंसर अकॉर्डिंगली। अब चलो इससे भी टफ दे रहा हूं मैं, इससे टफ है, बट यही आइडिया सेम लगेगा, बट उससे पहले नॉर्मल लेवल, फिर से बोर्ड लेवल, नीट लेवल, पहले फिर से कैसा, ये एक मास है, मैं बड़ा करके ड्रॉ कर रहा हूँ, तुम लोग भी ड्रॉ करो। एक मास है, क्लास 12 शुरू होगा ना, और तभी जाके ऐसा सम बनाओगे। सिर्फ m का जगह पे इफ आई रिप्लेस m/q चार्ज, बस क्वेश्चन 12 का बन जाएगा। तो अभी थोड़ा सा सीख लो, प्रैक्टिस करो। मैं बोला हूं कि वी विल स्टडी दिस इन क्लास 12, थोड़ा सा क्लास 11 में प्रैक्टिस कर लेता हूं। कैसा, 49 m है, और ये कितना है, 16 m है। मासेस आर सो ह्यूज। एम क्या है फिर, एम यहां पे है कहीं पे, यहां पे ये मास है m, दोनों में डिस्टेंस है r, स्मॉल। The distance between two planets A and B is smaller. In between the two, क्या किया गया, in between the two, a mass capital M is placed at a point, mass capital M है इसका, is placed at a point P. P is a point, ठीक है। P is a point,
M mass of the capital M mass of the particle that is placed at P, 49 m mass of this planet, 16 m mass of planet at B. Question क्या है? What is the value of R1 so that no force acts on the mass capital M placed at P. करो in terms of R answer bar करो. In terms of R or capital M आंसर निकालो. Where should you place this mass capital M कि इसका ऊपर कोई फोर्स ना लगे? माने फोर्स तो लगेगा ही. देयर आर टू मासेस, तो एक इधर टानेगा दूसरा उधर टानेगा तो इसका ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाएगा. Where will that take place? At what distance? That is the question. Sir, R1 equals to 49 by 65 bar. 49 by 65. अच्छा, I am writing another version of the question. हाँ, नीचे. ठीक है जी, देखिए और बोलो. This is another version. Huh? If there is no force acting, that means intensity of that field is 0. Same meaning. In class 12, I'll explain it in great detail to you. Don't worry. So, लिख के रखो बस. अच्छा, so about the answer now. Any other student who has done this with some different answer or same answer or any answer? Sir, আমার 7 by 11 RS. Sir, আমি 40 কত এসছে তোমার আদিত্য? 49 by 65. অর্ক ওটাই বললো তো, ওইটাই বললো. ঠিক আছে, let us see this. देखो, दूसरा कलर यूज करता हूँ. If we consider this mass, then the force of attraction on that capital M due to A is in this direction. Let us call it F exerted by A. How much will FA be? FA will be this much. कलर तो बहुत अच्छा है. अच्छा, FA would be given by force तो G M1 capital M, M2 इसका mass 49 m divided by distance square R1. This is FA. Similarly, B is also attracting this by a force. Sir, আমার 7 by 11.
এটা কার এলো? এটা তো দেবদূতি বলেছিল। আর কে বললে এটা? ইন্দুব্রত। আচ্ছা ঠিক আছে, দেখা যাক। তাহলে 49 এফ বিটা দেখি কত আসছে। এফ বি জি, বুঝতে পারছো তো? ফোর্স এফ বি ইজ নাথিং বাট দ্য ফোর্স বিটুইন দিস एंड दिस, ये दोनों में अट्रैक्शन। सो जी एम, उसका मास 16 एम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस अगर r1 है और टोटल डिस्टेंस अगर r है, सो ऑब्वियसली दिस शुड बी r माइनस r1। माने हम लोग इसको मान रहे हैं r1, तो रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस विल बी r माइनस r1, r माइनस r1 होल स्क्वायर हो गया। नाउ दिस विल फिल और एक्सपीरियंस नो फोर्स। नो फोर्स का माने F इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। दैट मीन्स वट एवर फोर्स एफ ए इज, एफ बी शुड बी इक्वल बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इक्वल तो कर लूँ, ऑपोजिट तो मान लिया हूँ, पिक्चर में ड्रॉ कर दिया हूँ, कम से कम इक्वल तो कर लूँ। इक्वल कर लेते हैं जी। भाई ये एम मिल के कितना हो रहा है? नंबर सोचो, 49 m स्क्वायर डिवाइडेड बाय r1 स्क्वायर। अब जल्दी सोचने वाला काम हो चुका है, अब से एप्लीकेशन। यहाँ पे कितना आ रहा है नंबर वाला? 16, बाकी m स्क्वायर डिवाइडेड बाय r माइनस r1 का होल स्क्वायर। अब जब भी ऐसा होता है, जो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल तो कर दूँ, फिर जब भी देखोगे ना नीचे होल स्क्वायर आ गया, दोनों साइड में होल स्क्वायर आ गया, तो a माइनस बी का फॉर्मूला तो जानते हो, r माइनस r1 का होल स्क्वायर। उसका फॉर्मूला कभी मत करना। क्यों? बिकॉज लेंथी मत करना, मैं बोला हूं पहले, फिर से बता रहा हूं, बिकॉज यू वुड बी हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन लाइक ग्रेविटेशनल फील्ड। कभी भी स्क्वायर मत करना, स्क्वायर रूट करो बोथ साइड का। दैट्स व्हाई आई हैव गिवन यू दीज वैल्यूज। देख रहे हो ना, वैल्यूज को देख के कुछ लग नहीं रहा है कि ये 7 का स्क्वायर है, वो 4 का स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर रूट करो बोथ साइड का। इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? इसका स्क्वायर रूट that was a trap, that's why, but okay, एक हाथ থেকে শেখো। হ্যাঁ, আর ভুল করো না। ইলেকট্রিসিটি তো 12 কাজে লাগবে, নো প্রবলেম, শেখো, ওটাই মেন। আচ্ছা দেখো, সো উই গেট দিস থিং নাও ফ্রম দিস। হ্যাঁ, r1 কত এসছে? দেবদূতি কত বলেছিল? 7/11 r1 টা এসছে 7/11। 7/11 r। ঠিক আছে, হিন্দু বলতো এটাই আসছে। शॉर्टकट इतना करने का टाइम नहीं है। बोलो, तुम ही लोग बोलो, शॉर्टकट क्या करूं? 11 देखो शेष होते चलो, তোমরা হাফ টিচার হয়ে গেছো। বলো শর্টকাট কি করবে এটার? শর্টকাট बताओ, आंसर देख के बताओ। Anyone? Any shortcut ideas? Sir, ওই root over of 40 মানে a1 এর মাস by root over of a plus b এর মাস into r. And why is that? आइडिया को समझो, क्योंकि मैं आइडिया सिखाना चाहता हूं, ना कि सम सिखाना चाहता हूं। सम्स आर अनलिमिटेड, आइडियाज टू अ लार्ज एक्सटेंट आर लिमिटेड, टू अ लार्ज एक्सटेंट। वो सीखो। अगर बोल रहा है कहीं पे फोर्स इक्वल है, तो माने दैट मीन्स फोर्स इज कांस्टेंट। अब सोचो कि उस साइड में कौन कौन कांस्टेंट है? कैपिटल जी इज कांस्टेंट। अच्छा,
So from this बचा कुचा relation, बचा माने ऊपर में जो है, कुचा माने नीचे जो है, that is called बचा कुचा relation. So from that बचा कुचा relation, what can we write? Product of the masses is directly proportional to square of the distance. समझ लो? Square of the distance. ये दोनों में से अगर एक मास फिक्स्ड हो गया, आउट ऑफ टू मास है, सपोज एक मास फिक्स्ड हो गया, लाइक सपोज दिस मास इज फिक्स्ड, ये लॉलीपॉप नहीं है, मास बोल रहा हूं मैं, दिस इज अ मास, सपोज एम फिक्स है. नाउ यू हैव गॉट अनदर मास टू एक्सपेरिमेंट विथ. ये मास को आगे पीछे करोगे, एंड इफ यू कॉल दिस डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स टू बी आर, देन फ्रॉम दिस रिलेशन कैन यू अंडरस्टैंड प्रोडक्ट ऑफ द मासेस में तो ये मास फिक्स है, ये मास आगे पीछे करेंगे और इसका मास भी कम ज्यादा करेंगे. सो इफ दिस इज द सिनेरियो दैट पिक्चर को देखो, जो सुनने को आ रहा है, आई एम नॉट श्योर वेदर दे आर र्यूमर्स और नॉट, सुनने को जो आ रहा है, क्वेश्चंस may be asked from practicals next year onwards, competitive exams में. तो ये मान लो ना, ये प्रैक्टिकल्स, अरे प्रैक्टिकल में क्या है, थ्योरी का ही तो एप्लीकेशन है, डोंट वरी, आइडिया को समझो. देखो प्रैक्टिकल टाइप का ही हो जाएगा. आप ग्रेविटेशन का मास लेके क्या प्रैक्टिकल करोगे? अर्थ में तुम रहेगे, योर फ्रेंड इज सेंट टू मून, दोनों को बोले कि भाई साहब फोर्स कितना आ रहा बताओ, ऐसा तो होगा नहीं. तो कॉमन सेंस अप्लाई करो. व्हाट इज इन दिस पिक्चर, देखो, इफ अ मास स्मॉल m इज एट अ डिस्टेंस r, द फोर्स विथ कैपिटल M in this scenario is F1. If the mass grows bigger and becomes M dash, बहुत बड़ा हो गया ये मास, और उसको डिस्टेंस भी ज्यादा कर दिए, so that in this scenario the force between these two masses, capital M and M dash, is F2. Now it is said that this F1 and this F2, force between these two masses, ये दोनों masses का जो force है F2, ये दोनों same है. Now what is the correct relation? M by R, M dash by R dash. ये करेक्ट है कि नहीं, और इसे अगर नहीं है तो व्हाट शुड बी द करेक्ट रिलेशन, बताओ तो यहां पे. अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो ये फॉर्मूला ही लिख देता हूं. फोर्स इक्वल बोला तो G M by R स्क्वायर, और क्या बोला, F2 इक्वल है. F2 कितना होगा, G, ये मास तो सेम ही है, M, वो मास now grows to M dash, so the distance we had to increase this, R dash का square. These are conventional methods जो तुम लोगों को करने में अच्छा लगता है, और ये जो मैं सिखा रहा हूं नॉन कन्वेंशनल, देख के ही आंसर कर दोगे इफ यू कैन अंडरस्टैंड दैट. कैसे, देखो अब क्या आया, M बाय R नहीं आया, R का स्क्वायर आया. इसका मतलब ये हो गया M and R स्क्वायर प्रोपोर्शनल करना पड़ेगा. अब यहां पे आ जाओ, 16m डिस्टेंस मालूम नहीं, इधर 49m डिस्टेंस मालूम नहीं, तो यहां से समझ रहे हो कहां गया, रेशियो ऑफ मासेस, यहां से इफ वी राइट दिस रेशियो ऑफ मासेस
m by m dash should be equal to ratio of distances r by r dash whole square. ये कब होगा? When force applied is equal. वही हुआ था ये सब. 49 by 16 equals to r1 by rest of the distance r minus r1 whole square. वही आया था. ये देखो, ये देखो. Anyway, मैं तो बोल रहा हूँ भाई उतना चालाकी एग्जाम हॉल में याद नहीं आए, नो प्रॉब्लम, राइट द बेसिक. फोर्स को इक्वल कर. लास्ट सम, as I said, last sum up. फोर्स को इक्वल करो. এইটা এইটা এর আগে এইটা আচ্ছা না স্যার যেটা এখনই হলো এই সামটা করলাম এইটাই করলাম এইটা আর তুমি যেটা বলছো m by r ও এইটা 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 বলছি আচ্ছা হ্যাঁ এইটা না লিখেন m proportional to r square এটা হচ্ছে মান अच्छा तो लास्ट ये वाला এটা একটু স্ট্যান্ডার্ড लेकिन बहुत स्टैंडर्ड कुछ नहीं है ना ये गोल ठीक ठाक होच्छे ना ऐसा करो ये एक गोल स्फीयर ड्रॉ करो एक गोल स्फीयर ड्रॉ करो कि मान लो कि एक या ये क्या हो गया this is better this is a planet ये एक planet है ऐसा and और एक planet है यहाँ पर एक बड़ा planet ले लेता हूँ ऐसा this is a bigger planet हाँ तो ऐसा this is a bigger planet mass of one planet इसको लिखो mass of one planet m bigger planet 16 m this bigger planet has a radius 2a and this smaller planet has a radius a radius 2a radius now these two planets are placed at a certain distance and that distance is how much center to center distance is 10a तो देखो तो a क्या है a is the radius of this blue planet चले ये जो another planet है उसका radius double है 2a and the distance between center to center of the two planets is 10a क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन ये है कि there is another mass small m here छोटा सा mass small m with what velocity should you project it so that v equals to question mark लिख लो small m logic ये माने condition so that with what velocity should this small m be projected so that small m just
lands on 16 m, माने on the surface of 16 m। इसका माने क्या हुआ? इसको स्पीड देके थ्रो करने से इट विल ऑटोमेटिकली गो देयर? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इफ यू थ्रो इट विथ लो स्पीड इट विल बी बैक टू दिस प्लैनेट अगेन, और थोड़ा ज्यादा स्पीड दिए फिर भी ये बैक कर जाएगा, और थोड़ा ज्यादा स्पीड दिए अभी भी बैक कर जाएगा। लेकिन ये पॉइंट अगर क्रॉस कर गया ना, एंड इफ यू कैन थ्रो इट विथ सफिशिएंट वेलोसिटी सो दैट इट क्रॉसेस दिस पॉइंट, यहां पे अगर आ गया वो, नाउ इट कैनॉट टर्न बैक। क्यों? नाउ दिस प्लैनेट एंड इट्स ग्रेविटेशन इसका ऊपर भारी पड़ जाएगा। नाउ इट विल अट्रैक्ट दैट। तो ये मास अगर ये पॉइंट पार कर लिया तो इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस और उसी के ऊपर गिर जाएगा। देखो ना, भारी प्लैनेटेर काछे যখন सैटेलाइट छड़े तो सैटेलाइट एक सर्टेन ऑर्बिट का दूरी मेंटेन रखता है। इफ द सैटेलाइट कम्स क्लोजर टू दैट प्लैनेट, ज्यादा पास आ गया तो प्लैनेट टान के उसको खींच लेगा अपना तरफ। इट कैन नॉट कम आउट ऑफ दैट देन। तो हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा? वी हैव टू फर्स्ट फाइंड। तो क्वेश्चन समझ में आ कि नहीं? देखो क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड so that minimum velocity required so that this mass small m just becomes able to land on 16 m mass वाला planet जिसका रेडियस है 2a और इसका रेडियस है a, और टोटल डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर 10a है। This is again another IIT question, एक ईयर में आया था, वेरी फेमस क्वेश्चन है ग्रेविटेशन में। ऐसा कोई बुक नहीं जहां पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया हुआ है। तब मैं क्यों करा रहा हूं इसको? बुक देख के आंसर बता देना। मैं इसलिए करा रहा हूं, एक लाइन में करो इसको, एक लाइन, उससे ज्यादा नहीं, एक लाइन से। चलो मैं लिखते जा रहा हूं क्योंकि वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम। मैं लिखते जा रहा हूं, उसका माने समझो। फर्स्ट स्टेप 1 में ऐसा करना कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पे फोर्स ऑन स्मॉल एम मास जीरो होगा। ऐसा कहां होगा? मतलब उस पॉइंट को पार कर लेगा। मान लेते ना यहां पे कहीं पे है, मान लो यहां पे, यहां सपोज दिस पॉइंट इज पी, कि ये पी पॉइंट को अगर पार कर लिया बाकी रास्ता ये ऑटोमेटिक चला जाएगा। जैसे होता है ना, तुमको बोला गया कि दिस इज अ माउंटेन, तो तुमको बोला गया कि थ्रो दिस बॉल सो दैट इट क्रॉस रीचेस दिस पॉइंट। तो तुम अगर ये बॉल को माउंटेन का हाईएस्ट पॉइंट को पार करा दोगे तो बाकी का रास्ता तो ये ऑटोमेटिक चला जाएगा। जस्ट लाइक दैट ग्रेविटी भी ऐसे ही सोचो। मैंने जस्ट एग्जांपल बोला, ग्रेविटी को भी ऐसे ही सोचो कि ऐसा पॉइंट पी जहां पे नेट फोर्स जीरो है, दैट मीन्स ये भी जितना जोर से टानेगा ये भी उतना जोर से टानेगा। एंड वी जस्ट डिड दिस सम टू अंडरस्टैंड दैट। उसीलिए ये सम दिया था मैंने, ये सम। मैं पूछा था कि दो masses were placed, what would be the point P position so that net force is zero? We found that with this idea. मैं बोल रहा हूँ ठीक है, आइडिया अगर याद नहीं भी है कोई बात नहीं, हम लोग फॉर्मूला करके निकाल लेते हैं। तो let the position of P be x. So at a distance x, if the small mass goes to point P, the force is zero. तो स्मॉल मास का ऊपर कैपिटल एम कितना फोर्स देगा? सिक्सटीन एम कितना फोर्स देगा? टोटल डिस्टेंस कितना था? इट वॉज गिवन 10a।
अरे सब कैंसिल हो गया, स्क्वायर रूट करने से आ जाएगा, या तो लास्ट बार जो सीखे थे रूट ओवर डायरेक्ट। तो कितना आ रहा है, स्क्वायर रूट कर रहा हूं मैं, फोर एक्स और ये x 5x इक्वल्स टू 10 है। x कितना आ रहा है, दैट मीन्स 2a डिस्टेंस जाने से स्मॉल m का ऊपर फोर्स होगा इक्वल बाय दिस प्लैनेट टुवर्ड्स दिस एंड दैट प्लैनेट टुवर्ड्स दैट। तो टॉम एंड जेरी तो देखे हो, अगर उस पॉइंट का बाद उसको ऐसे करके थोड़ा सा ठेल देंगे, बाकी का रास्ता तो ऑटोमेटिक दैट विल गेट अट्रैक्टेड बाय 16 है। उसके लिए और एक्स्ट्रा वेलोसिटी देने का जरूरत नहीं, द वेलोसिटी हैज टू बी सफिशिएंट इनफ सो दैट इट कैन क्रॉस पास द पॉइंट P, बस। अब हम लोगों का सेकेंड स्टेप होना चाहिए, तो फर्स्ट स्टेप था, सेकेंड स्टेप होना चाहिए कि व्हाट शुड बी द वेलोसिटी, आ जाएगा आंसर, what should be the velocity so that this mass small m just becomes able to pass the point P। मतलब क्या है, मतलब P पॉइंट में जाके अगर उसका वेलोसिटी 0 भी हो गया ना तो भी चलेगा, बस P पॉइंट क्रॉस कर ले भाई। सो वेलोसिटी ऑफ दैट मास स्मॉल m इवन इफ बिकम 0 एट P तो भी चलेगा, उतना स्पीड दे दो यहाँ पे। तो अगर उससे भी ज्यादा स्पीड दे दिया तब तो आराम से जाएगी, इट विल श्योरली गो देयर। लेकिन क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ, मिनिमम व्हाट स्पीड यू शुड थ्रो द बॉल विथ, आई मीन मास विथ। तो तब क्या करेंगे कि एटलीस्ट ये पॉइंट को पार कर लो। तो पी पॉइंट में वेलोसिटी 0 मान के चल रहा हूं। हाँ, अब देखो तो पिक्चर 1 मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, पिक्चर 1 नहीं और ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, पिक्चर 1 देखो, ये जैसे यहां पे है इसी को देखो, पिक्चर 1, पिक्चर 1 में माने सिचुएशन 1 में बोलना चाहता हूं, उसका साथ सिचुएशन 2 एनर्जी बैलेंस करना चाहता हूं। पहले फिलहाल एनर्जी 1 लिख रहा हूं। इफ यू आर नॉट बीइंग एबल, आई मीन शुरू में उतना अगर नहीं होता है कोई बात नहीं, पार्ट करता हूं। चलो फर्स्ट पार्ट टगोरी की पार्ट, फर्स्ट पार्ट হচ্ছে व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी टोटल E1। देखो मैं लिख रहा हूं माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m बाय दोनों का डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर। अब स्मॉल m तो स्मॉल बोल दिया था, हाँ बोलो, रूट ओवर 5gm बाय 3a বলছো তো, ঠিক আছে দেখা যাক কি হয় এটা দেখছি। তো চলো ফার্স্টে E1 এনার্জি বার করছি মাইনাস জি ক্যাপিটাল M স্মল m বাই ওদের ডিস্টেন্স কত হবে সেন্টার টু সেন্টার স্মল a, আর এই মাসটা স্মল m মাসটা ইয়েলো মাস, ওর কোনো রেডিয়াস নেই বিকজ দ্যাট ইজ আ ভেরি স্মল মাস। ওকে, তাহলে এই দুটো হয়ে গেল ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस। अब येलो मास और ये 16m मास का ग्रेविटेशनल P कितना होगा माइनस जी 16m स्मॉल m डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। तो येलो कलर का जो मास है उसका रेडियस तो नेग्लिजिबल है, तो डिस्टेंस बिटवीन दिस मास और ये जो मास है येलो कलर का वो एक्चुअली ऐसा है, देखो एक्चुअली द येलो कलर मास इज लाइक दिस, इसका रेडियस करीब करीब 0 है। तो व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बिटवीन दीज टू, देखो तो 16m एक मास है एंड देयर इज अ पॉइंट मास, और ये डिस्टेंस है 9a। 16m एंड स्मॉल m ये येलो मास, इधर डिस्टेंस कत, टोटल डिस्टेंस छिलो 10 है और इसका रेडियस कितना a, तो बाकी डिस्टेंस बचा कितना 9 है। सो बेस्ड ऑन दिस पिक्चर व्हाट वुड बी द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, 9 है g m1 m2
बाय आर माइनस ऑफ, वो हो गया। अब बचा और एक एनर्जी, ये भी ना लिखने से भी चलेगा, मैं बोला था जो प्लैनेट्स फिक्स है, यही प्लैनेट है कैपिटल एम और 16 कैपिटल एम, ये फिक्स है, लिखो ना लिखो एक ही बात है, देखोगे। अच्छा चलो लिख देते हैं, माइनस जी कैपिटल एम 16m डिवाइडेड बाय दोनों का डिस्टेंस कितना 10a। दिस इज द टोटल एनर्जी एट 1, बट एक एनर्जी नहीं लिखा हूं, दैट इज कौन सा एनर्जी, काइनेटिक, बिकॉज यू हैव प्रोजेक्टेड इट विद v स्पीड, इसको थ्रो कियो, तो व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी, तो उसका होगा प्लस हाफ m v स्क्वायर। बस ये हुआ E1 और E2, E2 पिक्चर कैसा होगा जानते हो, ऐसा होगा m 16m, दोनों का बीच में कौन सा पॉइंट था P, एंड दिस मास, छोटा सा स्मॉल m मास था ना यहां पे, तो दैट स्मॉल m मास अब यहां पे आ चुका है P पॉइंट में, और उसका वेलोसिटी अभी 0 हो चुका है। अब देखो ये पोजीशन में क्या एनर्जी का एक्सप्रेशंस होंगे, दैट इज E2 एनर्जी इन द सेकेंड केस। जो ये मास स्मॉल m आते 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 इट रीचेस पॉइंट P, वो पिक्चर ये है। यहां पे क्या होगा देखो, G कैपिटल M स्मॉल m, यहां पे स्मॉल m आ चुका है, कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय दोनों का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस वी हैव फाउंड 2a, तो माइनस GMM बाय 2a प्लस इसका तो हो गया पोटेंशियल एनर्जी। अब ये दोनों का पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, किसका, इसका स्मॉल m और 16m, जैसे यहां पे किए थे, नेगेटिव G 16m स्मॉल m डिवाइडेड बाय ये दोनों का डिस्टेंस कितना होगा 8a। ऐसा क्यों, बिकॉज इफ दिस साइड इज 2a, नोटिस करो, इफ दिस x हैज कम आउट टू बी 2a, तो बाकी उस साइड का डिस्टेंस कितना होगा P से इसका 8a, उसलिए नीचे क्या लिखेंगे 8a। ये हो गया 8a, चलो हो गया, प्लस ये दोनों का फिर से अगर लिखेंगे, कौन कौन कौन, G समझो, तो ये मास ब्लू कलर का और वो मास, चलो माइनस G M 16m डिवाइडेड बाय 10a, 10a ये ये दोनों को इक्वल करना, ये कैंसिल हो गया। मैं बोला था ना भूल से भी इसको भूल करके लिख नहीं पाओ तो इट विल सेव योर टाइम, बिकॉज दीज टू मासेस आर हियर टू स्टे, तो उसका पहले भी जो एनर्जी था पोटेंशियल बाद में भी उतना ही रहेगा, दे विल गेट कैंसिल, उसको लेकर सोचो ही मत। सो दिस इज द पार्ट। अब देखो कितना आ रहा है, GMM by A at a minus GMM by A 16 by 9 at a 1, that means 25 by 9 लेफ्ट साइड আসবে। नेक्स्ट पेजे করছি দেখো, মাইনাস GMM by A into 25 by 9 এটা এলো equals to half mv square plus बाकी का कितना आया देखो, इधर हाफ, सॉरी उस हाफ एम ভি স্কয়ার তো এই সাইডেই ছিল, হাফ এম ভি স্কয়ার তো এই সাইডেই ছিল, তাহলে প্লাস হাফ এম ভি স্কয়ার ইকুয়ালস কত আসছে, রাইট সাইডটা মাইনাস 5 GMM বাই 2a।
अच्छा हाँ ठीक बोले छो कहनो ना जी एम एम बाई ए अगर अलग कर लोगे तो इसका आएगा हाफ, उसका आएगा 16/8 माने 2, तो हाफ और 2 दोनों ही नेगेटिव है, कितना हो जाएगा 5/2, हाफ और 2 आ रहा है 5/2, दोनों ही नेगेटिव है 5/2, ठीक बोले छो। तो ये आ रहा है -5/2 GMM by A. So if this is the scenario, by half m square पॉजिटिव आना तो कितना आ रहा है 5/2 और ये 25/9, how much 1/3 into no you are saying V most probably Aditya V. Now what is this relation? What is half m v square coming? GMM by A taken common. This is negative 5/18. Acha, this is 25/9 minus 5/2. Now you can cancel these two, and half v square is coming out to be GM by A, and this is 50 minus 45, 5/18. So this is 9 from this. V equals to, so √5/3 or root GM by A. That means simple root over 5/9 GM by A. Whatever be the answer given in the options, उसको टिक करना है। ये साम भी पुराना IIT का साम है, बहुत पुराना नहीं है बट है बहुत कंसेप्चुअल सम। क्यों? इसमें मैं बोल रहा हूं कि इफ दिस टोटल सम नहीं भी आए नीट के लिए ये सम में क्या लाभ है, मैं आंसर बता दे रहा हूं। नीट का क्वेश्चन देखो यहां से बना देता हूं, वेयर इज द पॉइंट P so that a small m placed at P experiences no force। 4 ऑप्शन दे दिया, हम लोगों का आंसर कितना आया था 2A, उसी के ऊपर बेस करके। सेकेंड, द टोटल ग्रेविटेशनल P ऑफ द सिस्टम गिवन, एक पिक्चर दे दिया, उसका ग्रेविटेशनल P पूछा, निकाल लो। सो दीज आर द नीट क्वेश्चंस इफ यू वांट टू से। और अदरवाइज देखो एनर्जी बैलेंस करने वाला आइडिया और नीट मेंस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। देखोगे ये किए थे, है तो ये बोर्ड लेवल का ही। बोलो। अच्छा ये ना कैलकुलेशन वाला ना, इसका पीछे। अच्छा अच्छा, लाज रख लिया इसने मेरा भाई, रूट का अंदर नेगेटिव आ जाता ना मुश्किल हो जाता। ये चलो नेक्स्ट पार्ट इज दिस। वो क्या है कि सपोज ये जो सम की है भाई, ये कैलकुलेशन से इतना कुछ, इसका मैं बोल रहा था कि इसका ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है यहां पे, and now it has been taken to a height small h और ये रेडियस r है, ठीक। ये मास है कैपिटल M प्लैनेट का, ये स्मॉल m। बस छुट्टी यही लास्ट है, मैंने साम नहीं बनाना है, जस्ट मेक अ फॉर्मूला ऑफ दिस। कैसे? व्हाट इज द change in potential energy as the body is moved a height h। हेडिंग दे दो, ये फॉर्मूला का हेडिंग है, ये बहुत आता है, बहुत आता है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एज स्मॉल m is taken from
सरफेस माने पोजीशन 1 टू पोजीशन 2, ऐसे लिखो। mgh लिखते हैं ना हम लोग, mgh पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है चेंज, mgh। तो ऐसा करके लिखना डेल्टा PE इक्वल्स टू mgh 1 प्लस h बाय r। ये है फॉर्मूला 1 प्लस h बाय r। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ चेंज in potential energy as the body is taken from one point to another। हाँ, अगर ये ऐसा हो गया कि h जो है ना हाइट, देखो हाइट कहाँ, राजा भोज कौन है यहाँ पे, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, और कहाँ गंगू तेली कौन है यहाँ पे, h मीन्स हाइट h मूव्ड अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, है ना। तो सरफेस ऑफ अर्थ से जितना हाइट ऊपर उठा है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो हम लोग चले गए पहाड़ के ऊपर, माउंटेन के ऊपर, कितना 1 किलोमीटर ऊपर, 1 किलोमीटर, बाप रे, बुर्ज खलीफा का छत में चढ़ गए। अच्छा 6400 किलोमीटर, ये रेशियो कितना आ जाएगा, h बाय r रेशियो कितना आ जाएगा, इससे भी छोटा होगा, 0.000 ऐसा आएगा। नेग्लेक्ट कर दो इसको, नियरली कितना ले लेंगे, 0। दैट मीन्स इफ h इज वेरी वेरी लेस देन r, ये रेशियो को क्या करेंगे, काट देंगे, लेंगे नहीं। देन ओनली डेल्टा P कितना होगा, जो मैकेनिक्स में सीखे थे। अच्छा, मैकेनिक्स में तो ये mgh करते थे, हाँ करते थे, बिकॉज द हाइट h वाज 5 मीटर, 10 मीटर, 20 सेंटीमीटर स्मॉल, दैट्स वाई। अदरवाइज ग्रेविटेशन में ये फॉर्मूला करना।